Good morning, everybody. Am I audible to you, Parthkar? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. We will wait for one more minute. After that, we are going to start our lecture. But till now, we had to go for some uh, basic learning that you have learned in the primary level before going to start this module, right? So आपको पहले क्या करना होगा कि जो आप प्राइमरी लेवल में पढ़े हैं, ठीक है, वो जो है आपको रिकॉल करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद ही हम ये मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी जो है यूनिट नंबर 7, दैट इज द नेम ऑफ द यूनिट इज एरिया एंड वॉल्यूम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ द सर्वेइंग। सो ये आप लोगों को मालूम है एरिया, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एरिया और वॉल्यूम क्या है, राइट। तो आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कितना फंडामेंटल क्लियर है, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, राइट। सो बेसिकली ये है यूनिट नंबर 7, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, शिवराज सिंह जाडेजा છે હાજર? Yes, sir. હા, આપણે ટોટલ સર્વેઇંગમાં કેટલા મોડ્યુલ છે, કેટલા Sir, યુનિટ છે? sir, 4. 4 મોડ્યુલ છે. આ બોલજી, નામ બોલજી, કયા કયા છે? Sir, નામ તો નથી ખબર. હા, તો એક કામ કરો, જાણીને આવો, બરોબર? હું તમને રિમૂવ કરું છું, જાણીને હા. આવો. ઓકે, રાજકુમાર વૈષ્ણવ છે? Yes, sir. યસ. Hello. આપણે કેટલા મોડ્યુલ છે ટોટલ સર્વેઇંગમાં? ત્રણ છે સર. ત્રણ છે. કયા કયા છે? સોરી સર, નામ તો નથી. હા, એક કામ કરો, જાણીને આવો, બરોબર? ઓકે, સો now let us ask somebody else so that we can have a great idea regarding our subject. पवन कुमार शाह, आपको पता है कि कितने मॉड्यूल है, कितने यूनिट है सर्विंग सब्जेक्ट में? पवन कुमार शाह। हेलो, हाँ सर। 3 सर। हाँ, बताइए कितने मॉड्यूल है? 3 3 है, बताइए 3 कौन सा? नाम नहीं पता सर। हाँ हाँ, moving you. Okay. Let us ask one more. And we are going to start. कुलदीप दादल છે? સર અવાજ બહુ આવે છે આ બેકગ્રાઉન્ડમાં. હવે નહીં આવે. કુલદીપ દાદલ છે? યસ સર. હા, અરે વાહ, રિસ્પોન્સ કર્યો એમ ને આખરી. બોલો જી, કેટલા મોડ્યુલ છે ટોટલ આપણે સર્વિંગ સબ્જેક્ટમાં? 3 સર. હા, બોલો કયા કયા? ચલો ફટાફટ જવાબ આપો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ના ખબર હોય તો ના પાડી દો, એટલે આગળ વધીએ. નહીં ખબર હા, સર. તો રિમૂવ કરું છું, જાણીને આવો ક્લાસમાં, બરોબર? ઓકે સર. ઓકે, ફર્ધર તો કોને ખબર છે પેલા તો એ મને કહો, કેટલા મોડ્યુલ છે ટોટલ? Yes, sir. હા હા હા, Yes. સુમિત, 7 मॉड्यूल है टोटल, हाँ, यस सर। जिसमें कंप्लीट हो चुका है, 5 का कंप्लीट हो चुका है, 2 बाकी है सर। सुमित सुमित हेलो हाँ सुमित, यस टेल मी. સર, આપણે ચેન સર્વિંગ પછી કંપાસ સર્વિંગ બધું કઈ ગયું.
પછી પેલા તો ઇન્ટ્રોડક્શન અને સ્કેલ નું કઈ કર્યું, સ્કેલ હમ. વિશે હતું. હમ. ઓકે ફાઇન. પછી તો हाँ ओके, तो एक तमने ब्रीफ आइडिया ये हो જોઈએ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे टोटल कितने यूनिट्स है, राइट? तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो है सिलेबस जो है एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, राइट? तो आप अगर आप अभी भी ये माइंड में है कि हमारे 3 मॉड्यूल है तो फिर आपको ये थोड़ा जानना होगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन और स्केल देखा था, समझा था, ठीक है? उसमें हमने अलग अलग टाइप्स के सर्वे देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग पढ़ा था, राइट? टाइप्स ऑफ द स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वो हमने पढ़ा था, वो था हमारा इंट्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में चेन सर्वेइंग की प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग और टाइप्स ऑफ ऑफसेट्स, राइट? और कन्वेंशनल साइंस हमने पढ़े थे। उसके बाद कंपास सर्वे। In compass survey, we have differentiate the prismatic compass and surveyor compass, right? And both have a individual method to carry out the survey. Whole circle bearing method. Here you can see whole circle bearing method, right? And reduced bearing method. Then we have practiced some of the examples related to the compass survey, right? In the previous lectures. Now this is the portion of the JSON leveling. You had understand this kind of all the types of the classification of leveling, example based on the reduced level, HI method, right? Rise and fall method, and based example based on that. Then we have understand the plan table survey. Then this 5 module had been completed. Okay. The only remaining modules are 6 and 7, which is a very small and very brief module, and which is you are aware about it. So that is GPS, global positioning system, in your mobile phone. You can check out the global positioning system. Okay. Through that you can check out your locations at a particular time. Okay. With respect to some location. So that is your GPS. And finally, we are going to discuss the area and volume. So today we are going to discuss the area and volume module. Okay. So now we are ending towards the ending of our syllabus, and lots of things you have learned already. So you need to apply into the real world. So first and foremost thing, let us ask few basic questions. Okay. જે લોકોને આન્સર આવડી જાય એના માટે બહુ સારું છે. અધરવાઇઝ એમને થોડુંક પ્રિપેર કરવું પડશે. જે પનિશમેન્ટ આપે બરોબર સિમ્પલ હોય છે, આપણે પનિશમેન્ટ વધારે નથી આપતા, રાઈટ? સો આપણે પૂછીએ, ચાલો મિત કવાર. મિત, हाँ सर। yes, tell me what is the unit of area? એરિયા હોય, તમે શાકભાજી કે કઈ લેવા જાઓ તો તમને કિલોગ્રામમાં મળે કે ભાઈ બટેટા લેવા ગયા આપણે તો તમને માર્કેટમાં કિલોગ્રામમાં મળે કે ભાઈ ત્યાં તમે એવું નહીં સાંભળ્યું કે 5 લીટર બટેટા આપો, રાઈટ? સિમિલરલી, what is the unit of area? Am I audible to you? યસ સર. यस। હા, એરિયાનું યુનિટ શું છે? હમ? Excuse me, sir. યસ. ભાઈ સરે લિંક મોકલી લેક્ચરની. હા, જય સરે પણ લેક્ચરની લિંક મોકલી ગ્રુપમાં. ના ના, એ તો લેક્ચર 5th સેમ નો છે. ઓકે, હું કહી દઉં છું સર ને. સરે આમાં પણ મોકલી દીધી છે. ઓકે, વાંધો નહીં, એમ કહી દઉં છું, ઇગ્નોર કરી દઉં છું, બરોબર? તમારે તો આ ઓનગોઈંગ જે લેક્ચર છે, હા રાઈટ? સર, ઓકે સર. ઓકે, સો ક્યાં હતા આપણે મિથ? હા, યુનિટ બોલો. हाँ सर। હા,
एरिया सर किलोमीटर मीटर હમ મને ચેટ બોક્સ માં લખીને આપી દો ને, ચેટ બોક્સ માં લખીને આપી દો મિત. હા, તમારું નામ અને તમારો આન્સર. મિત આન્સર રાઈટ. આમાં હોય છે. ચેટ બોક્સ માં લખીને આપી દો. રાઈટ. ચલો બીજા કોઈને પૂછીએ આપણે. ઉમેશ कुमार आप बताइए. यस सर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, ये सर स्क्वायर में बेसिकली जो होता है है मीन्स। यस स्क्वायर, यस मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, राइट. Then we can measure into feet square also, right? So that is the area of a unit of area, right? Now tell me Umesh, what if I want to find out the यस सर, area of this circle? लंबाई ये एल गुनी बी। Circle I am marking over here. ये जो पाई आर सर्कल है, स्क्वायर, हाँ, पाई आर स्क्वायर होता है सर। पाया स्क्वायर होता है, यस right, सर। right, yeah, yes. So these are the basic things you need to aware about, right? Okay. Kevin Parmar, यस सर। what is the unit of volume? मीटर क्यूब। Meter cube, right, you are right. Mohammad Avesh, હા સર. આપણે આ સિલિન્ડર છે હા એનું વોલ્યુમ કેવી રીતે મળે? સર પાઈ બાય સ્ક્વેર નું સૂત્ર મૂકીને સર. હા બોલો, ઇક્વેશન બોલો. हेलो सर। હા બોલો બોલો. सर आप शिवराज ने मैसेज आवे છે કે સર ને કે જોઈન કરે. અરે મેં કોણ છે એ થઈ જશે. હા, બીજા આઈડી થી થાવે ને કે બરોબર. ઓકે, કોઈ ઇશ્યુ નથી. જાણીને આવી ગયા હોય તો એનો પ્રશ્ન છે. ઓકે ચલો, આપણે કોને ક્વેશ્ચન પૂછતા હતા? મોહમ્મદ આવેશ. મને સર હા બોલો. આપણે સિલિન્ડર હોય એનું વોલ્યુમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો સર પાઈ બાય આર સ્ક્વેર નું સૂત્ર મૂકીને. હા પણ બોલો, ઇક્વેશન બોલો. પાય શું લખવું? પાય મારે શું લખવું? ચલો પાય તો લખ્યું. ચલો પછી પાઈ આર સ્ક્વેર આઈઆર સ્ક્વેર. હા ચલો પછી પછી કિંમત મૂકીને સૂત્રનો જવાબ અરે આપવાનો. કિંમત તો પછી આવશે, પેલા ઇક્વેશન તો પૂરું કરો. ઓકે ઓકે, ટેલ મી, હા, વોટ ડુ યુ નો અબાઉટ ધ વોલ્યુમ? તમને વોલ્યુમ વિશે શું ખબર છે કે શું હોય? તમારે ક્યાં રહેવાનું? વાંકાનેર. વાંકાના રહેવાનું. ઓકે ચલો. હા, વોલ્યુમ વિશે તમે શું જાણો છો? સર વોલ્યુમ વિશે નથી ખબર મને. હા તો એક કામ કરો, જાણીને આવો, રાઈટ. તમે રિમૂવ હા કરીએ આપણે. હા, જાણીને આવો ને પછી જો જોઈન ના થાય તો પછી દેટ ઇઝ યોર ઇશ્યુ, રાઈટ. હા Okay. So basically, my dear friends, we need to understand the basic concept of the area and volume. Majority of you are aware about it, but some of you are not getting this point that we need to understand the area and volume completely. So here I have some brief out the introduction of that area and volume unit. You can see one of the primary object of the land surveying. If you are doing a surveying, you require to calculate the area and volume both, right? When you are on the field and doing the surveying of a particular area or a particular land, that means you are directly connected with the area and volume. So what is the job of the surveyor on the field is to determine the area of a particular boundary, plot boundary. તમે કहीं घर खरीदवा માટે જાઓ છો, जब आप मतलब आपका घर जो है वो लेने के लिए जाते हैं, तब आपको सबसे पहले यही पूछा जाता है कि इसका एरिया क्या है,
तो इसका भाव क्या है, राइट, कीमत क्या है उसकी, दाम क्या है। तो एरिया जो है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जो है वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है कि कारपेट एरिया कितना है, राइट, बिल्टअप एरिया कितना है, प्लॉट एरिया कितना है। तो उसी सभी चीजों में ये एरिया एक वर्ड कॉमन है जो आपको समझना बिल्कुल जरूरी है और उसका आपको थोरली आपको मालूम होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली द क्वांटिटीज ऑफ द अर्थ हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम की मदद से, और एरिया की मदद से हम जो है प्लॉट बाउंड्रीज फिक्स कर सकते हैं, राइट। And it is also important for the planning and management of any engineering project. If you are working on any engineering project, let us say right from the beginning, from your house to the mega level structure, that is, you can say multi-story building, bridge, dam, right, and any other mega level engineering project, you must have to deal with the area and volume. So estimation of area and volume is the basic to the most of the engineering schemes. आप किसी भी ब्रांच में हो, कहीं पे भी हो, आपको एरिया और वॉल्यूम तो आएगा ही, राइट। सो दीज आर द बेसिक। नॉर्मली एरिया इज एक्सप्रेस इन द फीट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, एकर्स, हेक्टर, राइट। सो ये सभी चीजें जो है आपको यूनिट कन्वर्जन जो है आपको मालूम होना चाहिए, राइट। सो हियर आर सम द बेसिक यूनिट कन्वर्जन यू कैन सी, राइट। सो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना फीट होता है, राइट, फुट होता है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, राइट। सेकंड इज 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको अगर फर्स्ट थिंग याद है आपकी, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, तो आप आसानी से जो है वो फीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, राइट। उसके बाद जो है आप 1 किलोमीटर को इसका जो है स्क्वायर करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर ये होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो लैंड है पर्टिकुलर, राइट, इसका एरिया 5 हेक्टर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको मैं अगर मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। और एकड़ में भी बात होती है कि ये लैंड जो है इतने एकड़ में है, तो ये एकड़ में भी होता है 4046 यानी कि 4047 मीटर स्क्वायर। ये आपको बेसिक जो है याद रखने हैं। तो आप सभी को मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ये सब लिख लें। और वन मोर थिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आप गांव में जाते हो, रूरल एरिया में जाते हो, तो वहां पे जो होता है बीघा होता है, राइट। कि આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ तो इन्हें बीघा कहिए, बराबर। जरा कहीं तो लखिए, हिंदी में भी इसको बीघा बोलते हैं, राइट। बीघा ही बोलते हैं सर। हाँ, बीघा ही बोलते हैं, राइट। सो 1 एकड़ इज इक्वल टू, आपको ये भी याद रखना है कि 2.5 बीघा होता है, राइट। उसके बाद जो अपने हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपको लिखने हैं अभी अपनी बुक में, राइट, और ये सब याद रखना है, राइट। अब जो एक सिंपल कॉमन क्वेश्चन, तो आप ये लिख लीजिए, राइट, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सिंपली मेंशन यस यू इफ यू हैव कंप्लीटेड द राइटिंग, राइट। Okay, so many of you have aware about the thing, but majority the concept understanding is missing. So what I suggest you that who knows the meaning of 10,000 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको 10,000 मीटर स्क्वायर दिया सपोज आपको, राइट, लैंड आपको मैंने दिया, तो आप उससे क्या समझते हैं, ठीक है, वो कौन समझाएगा मुझे कि 10,000 मीटर स्क्वायर में તમને જમીન આપી, તો તમારા માઇન્ડમાં કેવું ઇમેજ બને છે? જેમ કે હું અત્યારે તમને એમ કહું કે મોબાઈલ, તો તમારા માઇન્ડમાં અત્યારે એક 3D ઇમેજ બની જાય છે મોબાઈલ જે ઇટ ઇઝ લુક લાઈક ધેટ. Similarly, I'm giving you another example that when I say the social media, like let us say Twitter, Instagram, so you have a icon in your mind, right?
सो मैं जब भी बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम, तब आपको क्या होता है कि इंस्टाग्राम का जो इमेज है छोटा वाला वो आपके माइंड में जनरेट होता है। सिमिलरली गूगल मीट का भी जनरेट होता है। तो सिमिलरली जब मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मैंने 10,000 मीटर स्क्वायर जमीन जो है आपको दी, तब आपके माइंड में कितना बड़ा लैंड का एरिया जनरेट होता है, उसके ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन पावर रहता है। तो अब ये मुझे कौन समझाएगा कि मैंने अगर आपको 10,000 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 हेक्टर जमीन आपको मैंने दी या फिर आपने खरीदी, तो उसका इमेज कौन मुझे समझाएगा कि आपको इमेजिन क्या करना होता है, वो कौन समझाएगा? एनीबडी? सर इमेजिन का मतलब कोई भी प्लॉट का जो है ना सर, उसका एरिया जो है वो सर 10,000 पे है। और जब हाँ हो मतलब सकता है वही उसका है, वही एरिया है जो है सर। सर 100 मीटर स्क्वायर और 100 मीटर इंटू 100 मीटर हो सर उसका। ओके, सो यानी कि आप बोल रहे हैं कि मैं अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊं, राइट, तो आप ये बोल रहे हैं कि सर मैंने आपको 10,000 मीटर स्क्वायर दिया, तो आप उसको डायरेक्ट 100 × 100 कर देंगे, राइट। तो 100 मीटर आपको एक्स डायरेक्शन में चलना है और 100 मीटर जो है आपको वाई डायरेक्शन में चलना है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो है हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, राइट, मे बी रेक्टेंगल ऑल्सो। आपको इज दिस विजिबल टू यू? दिख रहा है ये? यस सर। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, तो आपको मतलब कैसे कनेक्ट करना है वो आपको सीखना है, बाकी सभी चीजें जो है आपको मालूम है, राइट। तो मान लीजिए ये आपका 10,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसके बेसिस पे ही हम चलेंगे। तो 10,000 मीटर स्क्वायर जो आपका एरिया है यहाँ पे, तो 10,000 मीटर स्क्वायर का संतोष ने बोला कि सर हम क्या करेंगे कि सिंपल 100 मीटर जो है वो एक्स डायरेक्शन में चलेंगे, राइट, और 100 मीटर जो है वो वाई डायरेक्शन में चलेंगे। तो इज दिस द मेथड संतोष? आ मेथड है? हाँ सर, अगर एरिया फाइंड करना हो तो हम उसमें ऐसा कर सकते हैं ना। ओके, दूसरी कोई समझा सकता है कि 100 हमने लिया, इसके अलावा भी हम एड ऑन कर सकते हैं कुछ? हाँ, कौन? दीपक कुमार चौधरी, हाँ बोलिए। यस सर। 10,000 मीटर स्क्वायर, राइट। 1000 मीटर स्क्वायर है ना? हाँ। हेलो, उस हम्म। 1000 मीटर स्क्वायर इसका खंड कर सकते हैं सर। खंड करके उसके बेस पर सर हम उसका ओके लंबाई और फाइन, ब्रेथ रख सकते ओके हैं। फाइन, चलो आपको एरिया के बारे में मालूम हो गया, राइट। मैंने 1 एकड़ आपको जमीन दी या फिर 1 हेक्टर जो आपने जमीन खरीदी, तो उसका जो 100 मीटर बाय 100 मीटर जो है वो आपको एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में चलना है, राइट। तो अब मैं अगर आपको कहूँ कि यहाँ पे है बीघा, ठीक है, तो बीघा अगर मैंने बोला कि आपको जो है 1 बीघा है आपके पास लैंड अवेलेबल है, तब आपके माइंड में कौन सा इमेज जनरेट होता है, आप मुझे बताइए। तो ये तो सिंपल था, 100 मीटर बाय 100 मीटर, आपने 10,000 का अंडर रूट कर दिया, 100 बाय 100 कर दिया, या फिर आप किसी भी मेथड में सर जा सकते हैं अंडर रूट करके, या ठीक है, अल्टीमेट थिंग आपको 10,000 मिलना चाहिए। ओके, सो व्हाट इफ आई से यू हैव ए लैंड ऑफ 15 बीघा, अगर आपके તમારી પાસે 10 વીઘા જમીન છે, ચલો, તો 1 વીઘા હું બોલું ત્યારે તમારા માઇન્ડમાં કેટલું ઇમેજ જનરેટ થાય છે? ચલો ટેલ મી, લાવ, ચલો કોઈને આઈડિયા ખરો? કોઈ છે વિલેજ થી આપણે? કેવિન પરમાર, મોરબી. ચલો વાંધો નહીં, બીજું કોઈ છે જેને ખ્યાલ હોય? પ્રસિદ્ધ ચાવડા? सर इसका एरिया जो है 90 इंटू 45 कर सकते हैं सर। 1 મિનિટ, પ્રસિદ્ધ?
હા કાંઈ આઈડિયા ખરો? 1 વીઘા હા જ્યારે સર હું વાત કરું ત્યારે શું આપણા માઇન્ડમાં જનરેટ થવું જોઈએ? કેટલું સ્ક્વેર બને અંદાજિત? ના સર એવું તો ઓકે ફાઇન, ચલો તો આપણી પાસે શું છે, તમારે ક્યાંથી જવું પડે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી નીડ ટू ब्रिंग दिस बीघा इनटू मीटर स्क्वायर, राइट? પછી તમે બધી વસ્તુ કરી सकते हो। आपको ये क्या करना होगा, 1 बीघा लैंड जो है आपका, उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तब जो है आपके पास एक यहाँ पे फॉर्मूला है 1, ये आपको चीज अच्छे से आनी चाहिए यार, राइट? आप किसी भी मेथड से या फिर कंप्यूटर में भी निकाल लो, है ना, गूगल में जाके सर्च करके आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 बीघा जो है वो कितना होता है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता है कि बीघा का भी अलग अलग यूनिट होता था। जैसे कि आप वडोदरा में है तो वहां पे जो सयाजीराव गायकवाड़ का जो एम्पायर था, तो उनका बीघा जो है वो सौराष्ट्र के बीघा से बड़ा होता था, राइट? और आपने एक और चीज भी सुना होगा कि गुत्था, वो भी एक होता है। तो एक વીઘા એટલે 16 ગુઠ્ઠા થાય। કેટલા થાય સૌરાષ્ટ્રની અંદર? તમે જ્યારે પણ જમીનની આપ-લે કરો ત્યારે તમને વીઘા અને ગુઠ્ઠામાં પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ। જેમ આપણે ફૂટ અને સેન્ટીમીટર છે, લાઇકવાઇઝ વીઘા અને ગુઠ્ઠા છે, રાઈટ? તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર વીઘા, 1 વીઘા એટલે 16 ગુઠ્ઠા, 16, 1 बीघा is equal to 16 गुठा, right? So गुठा is a unit of a area of a particular land, right? Similarly, अगर आप वडोदरा में होते हो तो उसका बीघा का जो वॉल्यूम है वो जो उसका एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, राइट? क्योंकि वहां पे जो है वहां पे अलग टाइप की चेन यूज करते थे। सो अल्टीमेट थिंग इज आपको जो है ये बीघा का 16 गुठा याद रखना है, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ, क्योंकि यही एक बेसिक चीज है जो आपको आनी चाहिए, राइट? और एरिया वॉल्यूम चैप्टर यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, राइट? सो आपके पास क्या है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू, पहले तो 2.5 बीघा है, राइट? राइट, ये आप लिखते जाना साथ में, राइट? और उसका एरिया है 4047 मीटर स्क्वायर। 0.6 है। हाँ तो 7 हो सकता है ना, 0.7 है तो, राइट? फॉर द सेक ऑफ आवर नॉलेज दिस इज राइट, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी, बाकी कोई नहीं है, राइट? तो ये आपको मालूम है। अब क्या कीजिए, आप जो है इस, आपको ये दिख रहा है कि इसको आप जो है अब क्या कन्वर्ट कीजिए, बीघा को जो है मीटर में कन्वर्ट कीजिए, राइट? सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस बीघा को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 1 बीघा इज इक्वल टू 4047 डिवाइड बाय कितना होगा, 2.5। व्हाट इज द आंसर? 16 18 1618। ओके, 1618.8 समथिंग, राइट? हाँ, मीटर स्क्वायर। तो ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ना प्रोसेस, वो आपको कंप्यूटर में भी आना चाहिए, राइट? सो कंप्यूटर इन सेंस कि जब आप जॉब करने जाओगे या फिर जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब जो यही चीज आपको बार बार जो है आपको आएगी, राइट? तो हमें अब बीघा मिल गया, कितना मिल गया, 1618.8 मीटर स्क्वायर। अब मैं जब आपको बोलता हूं कि 1618 मीटर स्क्वायर हमारे पास है, तब आपके माइंड में कौन सा इमेज जनरेट होना चाहिए? कि सिंपल आप क्या कीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये वाला जो स्क्वायर है वो उसको हमें बीघा को मीटर में लाना है, राइट? तो मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब क्या कीजिए, आप 1618.8 का अंडर रूट कीजिए, 1618.8 का अंडर रूट कीजिए, तब आपको आंसर मिलता है 40, 4023। हाँ 40.23 मीटर क्रॉस 40.23 मीटर।
तो अंडर रूट मैंने इसलिए किया, आपको मालूम है अंडर रूट किस लिए किया मैंने? एक मिनट, हाँ क्योंकि सर वो स्क्वायर है इसलिए। सुमित सुमित आई एम आस्किंग टू सुमित। संतोष ने जब आपको पूछू तब जवाब देना, ठीक है? हाँ सर। आपके लिए मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ सुमित, हाँ हाँ मैंने अंडर रूट क्यों किया यहाँ पे? किया सर। હા અહીંયા 16 18 નું મેં અંડર રૂટ કરવાનું કીધું. હાલો, હા તમે આવી જાઓ, બીજા મેલ આઈડી થી આવી જાઓ. હમ? હમ? બીજા મેલ આઈડી થી આવી જાઓ. એક મિનિટ, હા શું? हाँ ઓકે, કામ કરો ને તમે છે ને યુનિટ નંબર 7 મેં અપલોડ કર્યું છે એ કન્ટેન્ટમાં, બરોબર? એ લખવા માંડો બુકમાં, રાઈટ? એ મને આજ સાંજ સુધીમાં પહોંચાડી દો એટલે તમને સમજાઈ જશે બધી વસ્તુ, રાઈટ? ઓકે ઓકે ઓકે. હા સુમિત, અંડર રૂટ શું કર્યું મેં અહીંયા કે ભાઈ મેં આ 40.23 આન્સર કેવી રીતે? હા 1 બીઘાનું સર એટલા મીટર થાય 16 18. જો તમે સમજો, you have a area is equal to meter into meter કે નહીં? હવે we have area 1618.8 is equal to meter square, right? સાચું ખોટું? યસ યસ. હા, તો હવે મારે મીટરમાં જ આન્સર જોતો હોય તો શું કરવું પડે? અંડર રૂટ કરવું પડે કે નહીં? અંડર હા સર. હા, સિમ્પલ છે. તો એટલે મને આન્સર મળ્યો 4.23. હા, ઇઝ ઇક્વલ ટુ મીટર. તો મને એક ડાયરેક્શનની લેન્થ મળી ને. તો ધેટ ઇઝ વાય. અગર હા આ તમને નથી ખબર, સો યુ નીડ ટુ વર્ક વેરી હાર્ડ ઓન ધ એરિયા, રાઈટ? સો હવે જ્યારે હું તમને એક વીઘા કહું ત્યારે કોઈ પણ જમીન ઉપર તમે એક્સ ડાયરેક્શનમાં 40 મીટર ચાલો, એક્સ ડાયરેક્શનમાં, અને 40 મીટર 40.2 મીટર વાય ડાયરેક્શનમાં ચાલો, એનાથી જે સ્ક્વેર બને છે એ તમારું થયું 1 વીઘા. સમજી ગયા તમે? સો આ બેઝિક છે. અને બીજું તમને એક હું નવી વસ્તુ શીખવાડું. બાકી બધી વસ્તુ તમારી પાસે અત્યારે નેટ ઉપર તમને મળી જશે, પણ હું તમને એક સરસ મજાનું જે છે તમને આરજીએસ ચેપ્ટરમાં એરિયા ફાઇન્ડ કરતા શીખવાડ્યું છે ને, રાઈટ? આરજીએસ જે આપણે આરજીએસ એક્સપ્લોરર જે હતું એમાં તમને ગૂગલ મેપ ઉપરથી કેવી રીતે એરિયા ફાઇન્ડ કરો, રાઈટ? તો તમારા જે જમીન છે ગામડે એની એરિયા તમે એ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો, અને વીઘામાં કેટલું છે ફાઇન્ડ રફલી તમને ખબર પડી જાય કે આટલી મારી પાસે આટલી લેન્ડ અવેલેબલ છે, બરાબર? અથવા તો આટલી લેન્ડ જે છે એ રસ્તામાં જાય છે કે અથવા તો ડિમોલિશન અથવા તો તમારે એન્ક્રોચમેન્ટ છે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ basic of the area and volume. If you are not knowing the unit conversion, if you are not knowing the how to find the meter. Now okay, tell me Sumit, ચલો આપણે બીજાના પૂછે common question. This can be asked in the UPSC exam. Okay, આ પૂછેલો છે UPSC exam ના ઇન્ટરવ્યુમાં. માની લો કે મારે आपको जो है एक टंकी बनानी है, ठीक है? पानी की टंकी बनानी है, जिसमें मैं अगर कहूँ आपको कि आपको पानी कितना लीटर चाहिए? पानी चाहिए 19,683, यानी कि आपको पानी कितना आना चाहिए? आप एक टंकी बनाओ, ठीक है? ऐसी पानी की टंकी बनाओ जिसमें पानी जो है कितना लीटर होना चाहिए? 19,683 लीटर पानी आना चाहिए. तो आप वो टंकी का साइज क्या रहेगा आप मुझे बताइए. एक एवी पानी की टाकी बनावनी है कि जेमा 19,683 लीटर पानी समाये. चलो केवी रीते आंसर करशो?
Who knows the answer? હું તમને સાઇઝ નથી પૂછતો, તમને કોન્સેપ્ટ પૂછું છું, બરોબર? So I'm asking the fundamental. સર હું કહું Wait a minute, wait a minute. આપણે પૂછીએ અભય. ઓકે, અનિકેત. હા સર, એક મિનિટ. હા, આન્સર મારે નથી જોતો. આઈ એમ નોટ આન્સર, આઈ એમ આસ્કિંગ ધ મેથોડોલોજી. હાઉ વિલ યુ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ? કે મારે 19,683 લીટર જ પાણી આવવું જોઈએ, એક ટીપું વધારે નહીં ભાઈ. સો હાઉ વિલ યુ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ? Tell me. Chalo, Aniket. Do you know the method how you are going to calculate? Aniket. સર એમાં Okay, fine. Chalo. સર મે આઈ? ઓકે, તમારી પાસે આવીશ, હું પૂછું છું. જે લોકો આપણે બેઝિક તો જાણી લઈએ, પછી આપણે તમારી પાસે આવીએ, બરાબર? અચ્છા, બેડીનું કોણ છે ભાઈ બેડી ગામમાં? कोई नहीं? ओके, चलो. सर इसका आंसर हम बताए क्या? हाँ हाँ, वेट वेट वेट, आई विल आस्क यू. करण कुमार चौधरी, आपको मालूम है? क्या सर? हाँ, क्या सर? ये मान लीजिए आपको एक पानी की टंकी बनानी है, राइट? हाँ सर. वो पानी की टंकी में 19,683 19683 लीटर ही पानी आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. तो आप वो पानी की टंकी कैसे बनाएंगे? बताइए. यही होता है ना गांव में. हाँ सर. हाँ, पानी की टंकी जो आपको बनानी है, कि बोलते हैं कि भाई मुझे इसमें 5,000 लीटर पानी चाहिए. 5,000 लीटर की टंकी आप कैसे बनाएंगे? चलो बताइए. If you are not knowing, let me know. Otherwise, let us move on. सर उसको कंक्रीट से सीमेंट और कंक्रीट डालकर सीमेंट नहीं, कंक्रीट नहीं. आप मतलब करोगे क्या, मतलब लास्ट में वो तो आप घुमा फिरा के हाँ लेके आ रहे हो. आप मुझे परफेक्ट आंसर बताए, कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे? आप मतलब मान लीजिए आप सिटी इंजीनियर बन गए, ठीक है? और सिटी इंजीनियर के पास ऐसा प्रॉब्लम आया कि सर हमें 5 लाख लीटर की पानी की टंकी बनानी है ना? पानी की टंकी आप बनाएंगे सर, उसमें हाँ 5 लाख लीटर पानी आना चाहिए, तो आप कैसे बनाएंगे? हाउ विल यू कैलकुलेट? डायमेंशन क्या देंगे? तो उसको एरिया और विड्थ और लेंथ को सर. आप बताइए कितनी होती है, बताइए. आंसर सिर्फ एक ही लाइन में है, ठीक है? आई एम नॉट आस्किंग द एग्जैक्ट फिगर. आपको कॉन्सेप्ट मालूम है या मेथोडोलॉजी मालूम है कि नहीं? चलो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू द मनन. चलो मनन, समझाओ. હા સર. હમ સર જો આપણે છે ને જે લીટર છે ને જેટલા લીટરની ટાંકી બનાવી હોય ને એને આપણે પેલા મીટર ક્યુબમાં ફેરવવાના, એમ કે ભાઈ 1 મીટર ક્યુબમાં આપણે 100 લીટર પાણી સમાય, તો हाँ એમાં ફેરવવાના અને પછી ઈ પ્રમાણે ડાયમેન્શન મૂકવાના. ઇન કેસ કદાચ 9 મીટરની ટાંકી બનાવી હોય એમ, તો 9 મીટરમાં કેટલું 900 લીટર પાણી સમાય 9 મીટર પેલા તો મને એ ક્યુબમાં. કહો કે 1 મીટર ક્યુબમાં કેટલું પાણી સમાય? ચલો એ મને કહો. 1 મીટર ક્યુબમાં હમ 1000 લીટર સર, સોરી 100 નહીં, हाँ. 1000 લીટર.
1000 હા, લીટર, રાઈટ? 1000 લીટર. સોરી સર. ઓકે, ચલો, ઓકે, ફાઇન. ચલો, હવે આપણને હા, ખબર પડી એટલે ગઈ સર કે ઇન ભાઈ કેસ કદાચ જો આપણે કહેવાય ને કેટલી થઈ 9 મીટર ક્યુબ ની ટાંકી બનાવી તો એમાં 9000 લીટર સમાય એમ. તો હવે આપણે 19,000 ની આપણે બનાવી સિમ્પલ, છે હા, તો ત્રિરાશી મૂકી દો, 19 ડિવાઇડેડ બાય 19. 19,000 ડિવાઇડેડ બાય તમે 1000 કરી નાખો હમ અને પછી એને √3 કરો. 3 રૂટ ક્યુબ. જેટલો આન્સર આવ્યો એ મૂકો એટલે તમને એક ડાયમેન્શન મળી જાય. Hmm. Yes, so that is the correct methodology. So what you can do is simple. आपको क्या करना होगा कि अगर 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 लीटर जो है पानी आता है, तो 19,683 में कितना आएगा वो आप सिंपल कर सकते हो, है कि नहीं? 9683 डिवाइड बाय 1000, सिंपल. तो कितना आंसर आया, है कि नहीं? समझ में आया? अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसका क्यूब रूट निकालिए, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. सो दैट इज मीटर क्यूब. अब आपको क्या करना होगा कि हमारे पास 183 वॉल्यूम है, तो इसका मीटर निकालना है, तो उसके क्या करेंगे हम, उसका जो है हम अंडर रूट लेंगे, लेकिन 1/3, राइट, जिसको हम घनमूળ આપણે કહીએ એને, રાઈટ, ગુજરાતીમાં. આ તો વસ્તુ છે તમારે જે શીખવાની છે, રાઈટ. તો આનું તમે ઘનમૂળ કરશો એટલે તમને મીટરમાં આન્સર મળશે, રાઈટ. સો હવે તમે એવું ક્યાંય નહીં સાંભળો કે 19,683 લીટરની પાણીની ટાંકી મારે બનાવી છે. તમારે શું કરવાનું, એને ક્યુબમાં ફેરવી દેવાનું. જેમ કે નેક્સ્ટ ક્યુબ કયો આવે છે, 27, રાઈટ. 1 ક્યુબ 1, 2 રેસ ટુ ક્યુબ 8, 3 રેસ ટુ ક્યુબ 27. તો આપણે એને એમ કહેશું ભાઈ, સજેશન તમારે એવું જ કહેવાનું ભાઈ 3 મીટર બાય 3 મીટર બાય 3 મીટરની તમારે, રાઈટ, ટાંકી તમે બનાવશો એટલે આટલું પાણી તમારે સમાઈ જશે. Is it okay for you, everybody? As an engineer, you need to deal with the round figure only. જ્યારે હું તમને 19,683 આપું, તમારે સીધું 20,000 લીટર કરી દેવાનું. શું કરવાનું, સીધું 20,000 લીટર. પ્લસ માઇનસ વધારે સમાવવું જોઈએ પાણી, ઘટવું ના જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ ધ કોન્સેપ્ટ. સો એવરી એન્જિનિયર મસ્ટ હેવ ટુ ડીલ વિથ ધ રાઉન્ડ ફિગર ઓનલી. તમને હું એમ ઓડ ફિગર આપું કે ભાઈ 17,573, તો આપણે કન્વિન્સ કરી દેવાનું સામેવાળા વ્યક્તિને કે 17,000 નહીં સાહેબ, તમે 20,000 રાખો. ભવિષ્યમાં તમારે ક્યારેક વધારે જરૂર પડી તો તમે એડ ઓન કરી શકો. So likewise, this is the complete methodology how we are going to calculate the volume of the particular object or particular or you can say the structure, right? तो अब आप जब रोड पे जाते हो यहाँ से घर, राइट, तब आप देखना जो पानी की टंकी होती है ऐसी, मैं यहाँ पे रफली बनाता हूँ, ठीक है? तो पानी की टंकी, सपोज दिस इज योर ग्राउंड लेवल, और ऐसे आपने टंकी देखी है, राइट, इस तरह की. आपने इसे देखी होगी, ठीक है? इस तरह की टंकी, पानी की टंकी जो आपने देखी है, तो उसका कॉन्सेप्ट ही यही है, राइट, कि इसमें मुझे 5 लाख लीटर पानी आना चाहिए. तो आप वो कैसे करोगे कैलकुलेट? दिस इज द मेथड. इसका एरिया का रेडियस क्या रहेगी, है? सो वो है आपकी मेथोडोलॉजी की 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, राइट. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट. आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस थिंग्स, ओके. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, और आपको उसको सजेस्ट करना है कि मतलब 3 बाई 3 बाई 3, राइट, 3 मीटर बाई 3 मीटर बाय 3 मीटर. तो उसमें जो है 20,000 लीटर पानी जो है वो आ जाएगा आराम से. उससे ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट मेथोडोलॉजी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया. सो आपको ये नहीं आता है तो कहीं पे भी आप जो है जहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, राइट, साइट पे जहाँ पे भी कैलकुलेशन हो रहा है, प्लान बन रहे हैं, उस क्लास आप 1 दिन 2 दिन हो, आपको सारा यूनिट का वजन जो है समझ में आ जाएगा. अल्टीमेट थिंग इज आप
ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। तो नाउ आई हैव अ फ्यू मोर स्लाइड्स फॉर यू। जैसे कि हमारे पास इरेगुलर फिगर है, तो हमारे पास एक मेथड थी, हम उसको या फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं लाइकवाइज, राइट। और जो बाकी जो बचता है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, या फिर हमारे पास ऐसी प्लॉट बाउंड्री है जिसको हम फिगर में डिवाइड करके, नॉन फिगर में डिवाइड करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लानीमीटर था, राइट। तो प्लानीमीटर का जो प्रैक्टिकल है हमने किया है, आपने वो अच्छे से समझा है, राइट। सो दैट इज द केस, आपने वो प्लानीमीटर जो है आपको मालूम है किस तरह से काम करता है। अगर आपकी फिगर जो इरेगुलर शेप में है तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। अब जो है अल्टीमेट थिंग इज कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम द फील्ड ऑफ नोड्स। जैसे कि हमने ये चेन सर्वे कर रहे हैं, राइट, चेन सर्वे कर रहे हैं, तो चेन सर्वे में ये हमारी सेंटर लाइन है, P to R, ये आपकी सेंटर लाइन है। जैसे हमने चेन सर्वे के प्रोसीजर में सुना था, समझा था कि एस, आप मान लीजिए यहाँ पे एक ट्री है, टी की जगह पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोल है, और क्यू जो है वो आपका बिल्डिंग का कॉर्नर है। तो हमने ये ऑफसेट्स निकाले हैं, दिस इज लेट अस कॉल द x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। तो उसके बेसिस पे आप जो है वो एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? कि हमारे पास फॉर्मूलाज है, हमारे पास 4 मेथड है, इसकी बाउंड्री है, राइट। तो मैंने इसको पहले इस तरह से डिवाइड कर लिया, जैसे कि हम ये फिगर ही ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये फिगर मैंने यहाँ पे आपको, दिस इज विजिबल टू यू राइट नाउ, ओके। सो अब जो है हमने क्या किया कि हमने छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया, राइट। इस फिगर को हमने क्या किया, छोटे छोटे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में बना दिया। तो अब जो है आपके पास क्या बचता है कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। आपको तो ये मालूम है ये सभी का, लेकिन जो बॉर्डर का जो है, राइट, ये वाला है ट्राइंगल, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, राइट, और ये भी आप। तो अब जो है मैं इसको जूम करता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो बाउंड्री यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे जो है ट्राइंगल जैसे बन रहा है, लेकिन वो कंप्लीट ट्राइंगल नहीं है उसका। आप यहाँ से एक सीधी लाइन बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप यहाँ से सीधी लाइन बना दी तो वो ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एरिया यहाँ पे बाकी रह जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो ये जो बाकी रह रहा एरिया वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमारे पास 4 फॉर्मूलाज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, राइट। उसके लिए हमारे पास टोटल 4 मेथोडोलॉजी, तो ये आपको लिखना है अपने बुक में, विच आर द 4 मेथोडोलॉजीज। एक तो हमारे पास हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो हो गया मिड ऑर्डिनेट रूल, ओके। सेकंड है एवरेज ऑर्डिनेट रूल, थर्ड है ट्रेपेजॉइडल रूल, और फोर्थ है सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो ये टोटल 4 मेथड है, राइट, एरिया फाइंड करने के लिए, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब जो है हम बारी बारी से सभी के फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या है? मिड ऑर्डिनेट रूल में जब हम एग्जांपल आपको देंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मिड ऑर्डिनेट रूल में ऐसा है कि आपको क्या है कि ये आपकी चेन सर्वे है, राइट। जो बॉटम लाइन है, बेस लाइन जो है वो आपकी चेन लाइन है, और ये जो फिगर बन रही है ऊपर ऐसे, वो आपका क्या है? प्लॉट बाउंड्री। जैसे हमने चेन सर्वे में सीखा था वैसे फिगर में आपको दिखा दूंगा वापस से।
Yes. Is this visible to you? Okay. Yes, sir. So आपने ये सीखा है, सभी चीजें आपने ये सीखा है कि ये हम चेन सर्वे कर रहे हैं, राइट? ए और बी हमारे मेन स्टेशन है, दिस इज द चेन लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर रोड, और हमने एक ऑफसेट ले रहे हैं D1 पॉइंट पे, राइट, विच इज अ परपेंडिकुलर टू दिस मेन लाइन। तो ये D1 D2 जो है वो एक क्या करेगा, इस तरह का आपका प्लॉट के हिसाब से आपको इस तरह का ऑर्डिनेट बना के देगा, है कि नहीं? ए और बी जो हमारी सेंटर लाइन है, तो D13 क्या है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इस एरिया का हमें अगर वॉल्यूम फाइंड करना है या फिर इस रीजन का, इस लैंड का जो है हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब आप देख सकते हैं इसका एरिया बन गया, राइट? इस इरेगुलर फिगर का एरिया हम वो 4 फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास सभी डिस्टेंस होने चाहिए, हमने मेजर करके लिया है चेन सर्वे कि सर हमारा, आप देख सकते हैं D1 डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए AB जो है 20 मीटर है, D1 मान लीजिए 5 मीटर है और D2 जो है वो 3 मीटर है। तो D1 5 मीटर है और D2 3 मीटर है, तो उसके बेसिस पे आप उसका एरिया निकाल सकते हो, राइट? तो उसके लिए कौन से फॉर्मूलाज हैं, तो हम ये क्लोज कर देते हैं। उसके लिए हमारे पास ऐसी फिगर आपको बन जाएगी, राइट? तो ये O1 क्या है? O1 इज नथिंग बट दैट इज योर डिस्टेंस। यहाँ पे कोई पेड़ है तो O1 मान लीजिए आपका 5 मीटर है, O2 कितना होगा, 4 मीटर सपोज। तो O2 जो है वो 4 मीटर है, O1 जो है वो 5 मीटर है, राइट? तो आपको क्या करना होगा कि ये सभी डिस्टेंस को मिला के आप एक फॉर्मूले की मदद से आप इसका एरिया तुरंत निकाल सकते हैं, राइट? तो O1 और O2 के बीच का डिस्टेंस जो उसको D कहेंगे, टोटल लेंथ को हम L कहेंगे, और O1 O2 जो है O3 से लेकर O5 तक हमारे ऑर्डिनेट्स यानी कि हमारे ऑफसेट्स रहेंगे, ठीक है? तो मिड ऑर्डिनेट मेथड जो है फर्स्ट रूल, उसका फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला जो फिगर है एरिया यहाँ लिखा वो आपकी बुक में लिखना है, ये वाला एरिया बाय मिड ऑर्डिनेट रूल, राइट? तो एरिया इज इक्वल टू D, D क्या है, दो ऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। फिलहाल आप ये कीजिए कि इसका आप जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए, राइट? क्योंकि हमारे पास अब जो है टाइम जो है 10:26 हो गई है, राइट? सो दैट इज द केस। तो आपको क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए, ऑलरेडी दिस इज अपलोडेड इन योर रिपोर्टेड। तो आपको एरिया के लिए क्या करना है, डेल्टा एरिया डेल्टा इज इक्वल टू D, D इज द कॉमन डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्डिनेट्स एंड H1 H2 दैट इज योर मिड ऑर्डिनेट। यानी कि आपको क्या करना है, हर बार O1 प्लस O2 डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मिड ऑर्डिनेट रूल। सिमिलरली आप O2 और O3 के बीच में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, O2 ऑफसेट मान लीजिए 4 मीटर है और O3 ऑफसेट जो है मान लीजिए वो आपका 6 मीटर है, तब आपको क्या करना है, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, वो आपका मिल जाएगा H2। वो जैसे हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको क्या करना है कि आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है और लिखना है, राइट? इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वन मोर थिंग इज एवरेज ऑर्डिनेट। आप सभी ऑर्डिनेट का एवरेज ले लीजिए ना, O1 O2 O3 O4 O5, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एवरेज ऑर्डिनेट रूल। और उसको नंबर ऑफ ऑर्डिनेट से डिवाइड कर दीजिए और उसको टोटल लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वो एरिया मिल जाएगा, ठीक है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवरेज, क्योंकि हम सभी ऑर्डिनेट का एवरेज लेंगे। एवरेज तो आपको पता है O1 O2 जो है सबका सम करना है और नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स कितने हैं वो आपको ऐड करना है, राइट? फिर आपका थर्ड है ट्रेपेजोइडल रूल। तो इसमें कुछ अलग से फॉर्मूला है, फिलहाल आपको ये फॉर्मूला का प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप टोटल एरिया कैसे निकालोगे, ये दिस इज द फॉर्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या करना है वो हम एग्जांपल करने के टाइम हम सीखेंगे कि सबसे पहले ऑर्डिनेट फर्स्ट O1 और ON यानी कि सबसे आखिर वाला ऑर्डिनेट, राइट? फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट और आखिर वाला ऑर्डिनेट, उसका समेशन करना है। उसके बाद प्लस 2 इंटू सभी जो बाकी रह गए जो ऑर्डिनेट्स उसका सम करके उसमें ऐड कर देना है और उसको मल्टीप्लाई करना है D/2 से, कॉमन डिस्टेंस से, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये E10 में भी अवेलेबल है, राइट? और लास्ट में
हम सिम्पसन्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल, उसमें क्या करता है कि कोई भी जो है आप अगर इरेगुलर फिगर है उसको आप जो है पैराबोलिक कंसिडर कर लो। मान लीजिए ये आपकी ये वाली जो है इसको आप पैराबोला कंसिडर करके कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। सो आपको ये हेलो, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। और पैराबोलिक कंसीडर करेंगे सिम्पसन्स रूल में, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सिम्पसन रूल में क्या अजम्पशंस है। तो पैराबोलिक आर्क हम कंसीडर करते हैं बाउंड्री को, और उसका फॉर्मूला सिंपल है। आपको कॉमन डिस्टेंस व्हाई इट इज 1/3 बिकॉज वी आर डिवाइडिंग विद द 3, so that is why it's a Simpson 1/3 rule। तो आपको क्या करना है, सेम फंडामेंटल, पहला ऑर्डिनेट प्लस आखिरी वाला ऑर्डिनेट उसको समेशन करना है, प्लस 4 इंटू सभी जो है इवन नंबर के ऑर्डिनेट से उसको समेशन करना है, और प्लस 2 इंटू जो ओड नंबर के ऑर्डिनेट है उसको समेशन करना है। तो एक लिमिटेशन भी है, वो भी आपको याद रखनी है, राइट। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो हम एग्जांपल हम करेंगे ये वाला, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल तो आपको जो क्या करना है कि आपको फॉर्मूला सभी याद होना चाहिए, राइट। सो टिल नाउ वी आर एंडिंग अवर लेक्चर राइट नाउ। तो अगर किसी को डाउट है तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, और आप फटाफट से जो है अपना एंडोमेन नंबर लीजिए, राइट। और अगर आपको डाउट नहीं तो आप लीव कर सकते हो।